Hi guys, am I audible? Yes, Sameep. Hi. Hello, everyone, and welcome to this live Okay. session with AskPB, our newest series to decode all things about insurance. Thank you. Hi. Hello, everyone, and welcome to this new series with AskPB, where we decode all things about insurance. AskPB is a platform where you can ask anything about insurance, and our domain expert will answer your queries. If you want the link to it, you can check the description box. We have attached a link there. Coming back to today's session, we host this live session every Friday at 4 p.m. And so don't forget to tune in, please. Now we have Sameep Singh with us, who is Business Head of Investment and Savings. Welcome to the show, Sameep. Hi Simran, hi. Good to be here. Now, Sameep will be talking about the art of saving. It's something that we all want to do, but we do not know how, right? Also, we will be taking your questions at the end of the session, so please do not forget to leave them in the chat box below. Now, let's get started. So, can you help our viewers understand what savings exactly is according to you? And can you explain the importance of savings, to sort of build like a financial safety net for future? See, when you think about savings, do we keep this in Hindi, English, or do I do a bit of both? Both. We can do a mix of both, Sameep. Perfect, perfect. Works for me. Thank you. So, see, when we talk about savings, the first thing that you need to keep in mind is that you have to have goals, short term goals as well as long term goals. Now, when I talk about short term goals, it should ideally be at least a 5 year goal because, see, when you plan to invest something, कुछ growth plan कर रहे हो आप, तो एक दो साल में you will never be able to make real amount of money, right? You will never be able to make good returns. So that is why have at least a 5 year horizon minimum, and for your long term goals like child planning or your retirement planning, that should have at least a 15 to 20 year time horizon. So there are two kinds of horizon that you should plan for: short term and long term. And when you think about both, so see, if I talk about long term goals like saving for your child or saving for your retirement, see, things are getting more and more expensive in the economy as we move along. For example, if today your expense is 50,000 rupees a month, okay, Yeah. so and you are around 30 years old, when by the time you turn 60, the same expense would go on to become at a 4% inflation rate, maybe around 1.2 lakh rupees. So you would need at least 15 lakh rupees a year to maintain the same lifestyle that you're maintaining right now. So you have to start investing today. That is the biggest thing that needs to be kept in mind, that you don't have to think that you know, I'm just very young right now and I can delay my investments for a few years and maybe enjoy and then maybe start investing later. That is not the right approach, and you have to start now. And see, as I mentioned, if you plan for your retirement and you intend to save, example, 15 lakhs, right? If somebody has an expense of 50,000 rupees a month today, he would need 1.2 lakhs a month when he retires at 60. So that is around 15 lakhs. For that, you would need at least a 2-3 crore corpus by the time you retire, just to take care of your monthly expenses. So if you start today at 30 and just start with 10,000 rupees a month at a 10-12% rate of return, you can achieve that corpus in 30 years. So, and if you're not able to start with 10,000 rupees a month, start with 4 5, whatever you can, and keep incrementally increasing that amount. So the biggest thing when you're planning for savings is that you need to start today and not keep delaying, that maybe I'll do it after 2 years, 3 years, because every year that you delay, the amount of money that you would have to start with keeps increasing. So that is something that is of extreme importance. Start early. Okay, yeah, that totally makes sense, Sameep. Now, can you address some common misconceptions that people have about savings? See, common misconceptions that people generally have is that one very common thing is that all investment products, like a lot of people do marketing investments, right? And they do ULIPs. You can do either ULIPs or you can do mutual funds, right? And the misconception generally people have is that unit linked insurance plans are extremely high cost. They have a large commission associated with it, and it's not a great product. Is the misconception that most people have. While on the contrary, if you invest in a ULIP and you have bought something in the last 4 5 years,
the cost is almost at par, or the expense ratio in the product is almost at par with the mutual fund. See, most people in the end up buying from a distributor, right? You do not go and do it on your own. So the distributor expense is around the expense ratio in a regular low cost ULIP would be around 1.2 1.3%, and in a mutual fund also would be around similar lines. So the expense is not very different. You would be getting the same returns because the underlying asset is again equities, right? Mutual fund में भी equities में invest होगा, ULIP में भी equities में invest होगा. तो underlying asset अगर same होगा तो आपका net return बहुत ज़्यादा differ नहीं करेगा, right? And the other thing is that लोगों को और चीजें नहीं पता है कि देखो, for example, let's say mutual fund will give slightly better return. Maybe mutual fund gives a 15% return and a ULIP gives a 14% return because the underlying asset is the same. So बहुत ज्यादा difference नहीं होगा. तो उसमें 15 आया, इसमें 14 आया, ठीक है. But ULIPs में आपका up to 2.5 lakhs of annual investment is tax free, right? And in a mutual fund you have to pay 10% LTCG. तो अगर आपका 15% return आया तो उस पे आपको 10% tax भी तो भरना पड़ेगा. So that 15% it gets reduced by approximately 1.5%, right? So it becomes 13.5. And in the ULIP it remains 14%. So your net return again, even if the ULIP gives a 1% lower return, is still higher. So this is a common misconception that ULIPs are extremely high cost products. Maybe 10-15 years back, yes, they used to be high cost, but not anymore. Commissions are capped. Mortality, see, ULIPs में एक negative connotation होता है कि इसमें life cover होता है, right? और ये लाइफ कवर अब जो प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, उसमें ये लाइफ कवर की कॉस्ट आपको प्रोडक्ट खत्म होने के बाद वापस मिल जाती है. तो इट्स ऑलमोस्ट फ्री. प्रीमियम एलोकेशन, पॉलिसी एडमिन चार्जेस जो होते हैं वो भी ऑलमोस्ट जीरो है सारे लो कॉस्ट यूलिप्स में. तो जो नेट कॉस्ट है दोनों प्रोडक्ट की वो सेम होती है. सिमिलर ऐसे ही मिसकंसेप्शंस और हैं कि एफडी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. एफडी में लोगों का 6-7 लाख करोड़ का आई थिंक सब मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स है. सारे लोग एफडी करते हैं. और जब लोगों को कहा जाता है कि कोई कंपीटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर लो, जिनको हम गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट कहते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत हाई कमीशन प्रोडक्ट होता है, इसमें हमारा पैसा नहीं बनेगा कस्टमर का, एंड बाहर डिस्ट्रीब्यूटर का या इंश्योरेंस कंपनी का पैसा बनेगा ज्यादा. बट अब इन द लास्ट फ्यू इयर्स अ लॉट ऑफ न्यू एज प्रोडक्ट्स हैव कम, जो आपको एक तो देखिए एफडी टैक्सेबल होती है, तो 6.5 या 7% भी अगर एफडी आपको रिटर्न देगी तो वो टैक्स के बाद आपको नेट, अगर आप 30% ब्रैकेट में लाई करते हो तो 7% की एफडी भी नेट आपको 4.5 कितना हुआ, 2.8% तो टैक्स ही कट गया आपका. अगर आपका 7% रिटर्न आया, राइट, 2.1% टैक्स ही कट गया, तो आपका 4.95% ही नेट पोस्ट टैक्स रिटर्न आया एफडी में. और अगर आपको मैं एक इंडाउमेंट या ट्रेडिशनल गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट दूं जो 7.5% तक रिटर्न देगा, जो टैक्स फ्री होगा, तो इट्स अ बेटर प्रोडक्ट, राइट. बट एंड सी बॉन्ड यील्ड्स इन द कंट्री, तो जिसके बेसिस पे ये प्लान्स प्राइस होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बेसिस पे ये प्लान्स प्राइस होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स अभी 7.1-7.2% पे ही ट्रेंड कर रही है. पहले थोड़ी हायर थी जो 7.5 के रेंज में थी, बट आप 7.1-7.2% के रेंज में ट्रेंड कर रही है. और आपको इंडाउमेंट प्लान्स हैं जो 7.5% तक दे रहे हैं टैक्स फ्री. अगर आपकी एनुअल इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक है तो वो टैक्स फ्री रिटर्न दे रहे हैं आपको 7.5 तक. तो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है जो लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड पीपल आर मिसिंग आउट ऑन दैट, थिंकिंग दैट दीज आर इंफीरियर प्रोडक्ट्स and they don't do these investments. But that is what I'm trying to clarify here, that there are guaranteed return products that offer better returns than FDs. देखिए एक आस्क होती है कस्टमर्स की कि लिक्विडिटी का थोड़ा कंसर्न होता है कस्टमर्स को कि एफडी बहुत लिक्विड होगी, मुझे जब पैसा चाहिए मैं निकाल सकता हूँ. तो हम ये नहीं कहते कि आप सारा का सारा पैसा अपना इंडाउमेंट प्रोडक्ट में डाल दो या गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट में डाल दो, बट सारा का सारा पैसा एफडी में रख के उस पे कम रिटर्न लेना, उस पे टैक्स भरना, इससे बेटर है 50-60% आप इसमें मूव कर दो जो आपको डेली रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी नहीं. Right. So that is one other common misconception that I wanted to clear. Yeah, thank you for explaining that, Sameer. Now that we have established why saving is so important, कोई समझ गया कि सेव क्यों करना चाहिए. अब वो अपने सेव्ड मनी को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब बाहर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है टू सॉर्ट ऑफ सेव देयर बक्स. देखिए बेसिकली व्हेन यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स, एक तो एज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए. अगर आप बहुत यंग है
बहुत यंग का मतलब है कि आप लेस देन 30 हैं, राइट? तो मेरा सजेशन होगा कि आपका लार्ज पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी इन इक्विटीज। अब इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का ये मतलब नहीं होगा कि यू शुड इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन स्टॉक्स, बिकॉज सी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट. Everybody might not know or might not have the financial understanding or know how to pick and choose the right stocks, right? You would need some help in that. So there we suggest that you do ULIPs or mutual funds. Both are competitive. If you have a long term horizon, 10 to 12-year horizon, then obviously both are equally competitive. 10 to 12% return you can easily expect. तो यंग लोगों को इक्विटीज में ज्यादा पैसा रखना चाहिए. अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है विद द इक्विटी मार्केट्स, यू फील दैट दे आर वेरी वॉलेटाइल, अगर कोई जैसे कोविड जैसी मिस हैपनिंग 2-3 साल पहले आई थी, सडनली मार्केट्स फ्रॉम 50,000 या 40,000 लेवल स्ट्रेट अवे ड्रॉप डाउन टू 28,000, तो बहुत वॉलेटिलिटी हो गई थी मार्केट में. अभी भी लास्ट 1-2 साल में काफी वॉलेटिलिटी है, कभी सेंसेक्स 61 जाता है, फिर 58 आ जाता है. तो लोगों की इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होती रहेंगी. अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं है, so then there is a very interesting product that is available at Policybazaar called the capital guarantee product, where इसमें आपको क्या करना होता है कि आप अगर पैसा डालें, इन्वेस्ट करें, तो आपने जितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है, अगर आपने 1 लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए, so you invested 10 lakhs over 10 years, तो we guarantee, the insurance company guarantees that you will always get the 10 lakhs back. प्लस आपको मार्केट का भी कुछ फायदा मिलेगा, आपका कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और कुछ पैसे से आपको 100% गारंटी मिलेगी कि आपका जितना प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है वो वापस मिलेगा ही मिलेगा. तो आपको नेट रिटर्न अच्छा मिल जाता है, साथ में मार्केट का एक्सपोजर भी मिल जाता है. ये उन लोगों के लिए बहुत इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर दोज पीपल हु आर स्लाइटली अफ्रेड ऑफ द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. Thirdly, as you grow older, I think when people reach around the 40-year age segment, there you should also consider income plans. When I say income plans, these are basically guaranteed return income plans. And why I am saying that these are a good option is because, see, at 40, some people might feel that my retirement is very far off, right? But 20 साल है, but आपको आज से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल बाद आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी, राइट? एंड आपके एक्सपेंसेस सेम ही रहेंगे या बढ़ते जाएंगे. तो इनकम प्लान एक बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं, और आजकल इनकम प्लान की यील्ड्स काफी अच्छी चल रही है. अराउंड 7% रेट ऑफ रिटर्न ऑफर हो रहा है जो टैक्स फ्री है. तो अगर आप एक 5 लाख का इनकम प्रोडक्ट बुक करते हैं एवरी ईयर 5 lakhs for 10 years, after 12 years, so if I am 35 and I start today, from 47 years age or 48 years age, I can get a 6-7 lakh rupee income every year for the next 30 years. And इसमें ऑप्शन होता है कि आप 45 years तक इनकम ले सकें. तो इससे आप अपने फ्यूचर को, रिटायरमेंट को सिक्योर कर लेते हैं एक गारंटीड इनकम के साथ. तो जो भी आपकी इनकम आनी बंद होगी वंस यू रिटायर, वो आपने आज से इन्वेस्ट करके, प्लान करके रिप्लेस कर ली. So that is one very interesting option that people on the slightly older side, see, we get all kinds of audiences at Policybazaar here. We get people less than 30, उनके लिए मैंने बोला इक्विटी में डालो, यूलिप में डाल दो, म्यूचुअल फंड में कंफर्टेबल हो वहां भी डाल सकते हो. बट म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यूलिप में टैक्स फ्री होगा. कैपिटल गारंटी उसके लिए जो वॉलेटिलिटी से डरता है, और जो बाद में जो थोड़ा ओल्डर सेगमेंट आ जाता है जिसको इनकम चाहिए, उसके लिए मैं गारंटीड रिटर्न इनकम प्लान सजेस्ट करूंगा, जो 30-40 इयर्स तक की इनकम गारंटी करते हैं विद वेरी गुड कंपेटिटिव रेट्स, बेटर देन एफडीज. तो वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो लोग कंसिडर कर सकते हैं. Okay. Now, Sameer, what are some obstacles or roadblocks that one can face when wanting to invest, and how can they overcome them? See, obstacles when people start investing, I think the biggest obstacle is that, see, I'll answer this question like how to prevent these obstacles maybe, right? So see, biggest obstacle जो लोगों के हाथ लाइफ में आते हैं, हेल्थ केयर आ गया, कोई अचानक से आपने सेविंग प्लान करी और अचानक से फैमिली में कोई पेरेंट्स बीमार हो गए, या आप बीमार हो गए, वाइफ बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, और उस पर बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज करते हैं. तो उसके लिए एक हेल्थ कवर होना हर किसी के पास. आप बोलेंगे कि मेरी तो कंपनी है और वो कंपनी मुझे हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है, बट see, the earlier you buy your own health cover, the lower the cost would be of buying it. First of all, जैसे मेरे पास 20-25 लाख रुपीस का हेल्थ कवर है और उसकी एनुअल प्रीमियम सिर्फ मेरे को कवर करती है, वो 10-15 हजार रुपए के रेंज में आता है सालाना. तो बहुत रीजनेबल रेंज में मिल जाता है. और जितनी जल्दी आप ज्यादा लाइफ कवर खरीद लेंगे, उसके देखिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती हैं जो आपको अभी हैं, वो 3-4 साल बाद कवर हो जाती है प्लान में.
तो 3-4 साल बाद वो सारी डिजीजेज जो आपको आज हैं वो सब कवर हो जाएंगी, और जब आपको एक्चुअली इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी तब आपके पास एक बड़ी बढ़िया हेल्थ कवर होगा जो आपके सारे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करेगा. एंड then these things, the bills kind of increase very quickly, like we saw in COVID times. Any hospitalization, 10, 15, 20 lakhs can disappear very quickly, right? And aapki savings wipe out ho sakti hai because of a health scare. You, your family, everybody should have a health plan so that anything of this sort happens, you are covered. The other thing that people should cover for is death. Now death and disability is what we generally portray it as. तो इसमें देखिए टर्म कवर इंपॉर्टेंट होता है. टर्म कवर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए आप अगर अर्निंग मेंबर है, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स है, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स, इफ समथिंग हैपेंस टू यू, a 1.5 crore term corpus will ensure that आपकी 5-10 साल की इनकम रिप्लेस हो जाए. एक तो इंडिया में लोग 1-1.5 करोड़ से ज्यादा का टर्म कवर लेते नहीं है, तो वो 5-10 years ऑफ इनकम रिप्लेस कर पाती है. या आपका अगर होम लोन होगा तो होम लोन पे ऑफ कर देगा वो टर्म कवर. तो इससे आपकी फैमिली को कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट? एंड आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं. इसके साथ एक तीसरी चीज मैं और कहना चाहूंगा that is very important is that you have children. So when people think about after a certain age, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सेव करने के लिए भी बहुत ज्यादा सोचते हैं. So at that point what the biggest concern most people have is that if something happens to me, then what will happen to my children's future? Now there again, see, then the answer is ki you have a term cover, but will the term cover take care of everything? You have a home loan, it has to pay for that. Your wife and children's daily expenses need to be taken care of. So that term cover will take care of these three things. But your children's education, their marriage, for that you have been investing. आप यूलिप खरीद रहे होगे या म्यूचुअल फंड खरीद रहे होगे उसके लिए, राइट? कीपिंग दैट गोल इन माइंड. एज आई सेड, यू हैव टू प्लान बेसिस योर गोल्स. बट यूलिप्स आर दी ओनली प्लान्स व्हिच हैव अ वेरी यूनिक फीचर कॉल्ड वेवर ऑफ प्रीमियम. तो अगर आपकी डेथ हो जाए और अगर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा तो वो म्यूचुअल फंड स्टॉप हो जाएगा, कॉर्पस जितना है उतना ही रह जाएगा. बट यूलिप के अंदर अगर आप वेवर ऑफ प्रीमियम खरीद लेते हैं साथ में एक एड ऑन की तरह, तो इंश्योरेंस कंपनी आके आपके सारे फ्यूचर प्रीमियम्स भरती है. तो इससे क्या होता है कि आपके बच्चे के फ्यूचर में जो 15 साल बाद आपने कॉर्पस प्लान कर रखा था कि मैं हर साल 10,000 या 15,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करूंगा फॉर हिज फ्यूचर और हर फ्यूचर, that is taken care by the insurance company, and that also does not get impacted. So these are the 2-3 key things. See, basically death, health scare are impediments to saving enough for your future and for your goals. So these are the things that these are ways in which you can solve for these. और समीप, अगर किसी को इमरजेंसी फंड रेडी रखना है तो उनको कितना एम करना चाहिए सेव करने के लिए? व्हाट्स दैट परफेक्ट अमाउंट दैट दे शुड एम फॉर? सी, मतलब एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि 3 से 6 महीने की सैलरी, कम से कम 3 महीने की, और बेस्ट सिनेरियो में 6 महीने की सैलरी, तो लोगों को सेविंग्स बैंक में रखनी है कि एफडी में रखना है, वो पर्सनल चॉइस हो सकती है. पर्सनली मैं एफडी में रख लूंगा. तो मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को कि एफडी बेकार है और एकदम नहीं करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल. आई एम सेइंग आपको कुछ पैसा उसमें लिक्विड रखना चाहिए, क्योंकि वो आप इमीडिएटली जाके यूज अप कर सकते हो जब आपको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आएगी. दैट इज द प्रोडक्ट दैट विल गिव यू लिक्विडिटी. So I'm not saying that you should not do it. It is just that you should not only do that one product. You should diversify, and basically 3 से 6 महीने की सैलरी is what I would suggest you should have handy at any point of time. और उसको आपको टच नहीं करना है. ये नहीं है कि आपको हॉलिडे प्लान करनी है या गाड़ी खरीदनी है या टीवी खरीदना है नया, तो आपको दिखेगा कि अरे अकाउंट में तो 3 months of salary या 6 months of salary is there available, readily available to spend, right? Or maybe gift your wife something and I should just use that money. So that is something, वो money नहीं touch करना है. एक बार वो save हो गया है, that should always be kept aside and you should never touch it. वो पड़ा है वो पड़े रहेगा. Yeah. Till the day you are earning, that 6 months of salary should be kept aside for any exigency, because you see you cannot plan for these exigency. So वो जब होएगी आपको पता नहीं होगा, इसलिए वो 6 महीने का पर्पस हमेशा साइड रखो. Yeah. So I can see that our viewers are also engaging with us. We'll take up some of their questions now. Madhubala Chawla is asking, how much of one's income should they be saving for retirement? I think this is one topic that everybody wants to know about, retirement.
तो सी एज आई सेड, अगर आपका 50,000 का एक्सपेंस था, मैंने एग्जांपल लिया, देखो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन देयर आर कैलकुलेटर्स अवेलेबल ऑनलाइन दैट हेल्प यू डू ऑल दिस प्लॉटिंग. If you have a Yeah. 50,000 expense today, and if you are 30 by 60, by broad approximate calculations, at 5% inflation, you would need around 1.2 lakh rupees a month. Now 1.2 lakh rupees a month translates to around 15 lakhs a year. नाउ 15 लाख से ईयर के लिए आपको कम से कम 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए रहेगा, क्योंकि 2 करोड़ के कॉर्पस से आप 6% या 6.5% हर साल निकालोगे, तो 12 से 13 लाख रुपए एटलीस्ट आपके उस कॉर्पस से हर साल विड्रॉ हो सकते हैं, राइट? तो 2 करोड़ रुपए आपको कम से कम सिर्फ एक्सपेंस रिप्लेस करने के लिए, आपके जो एक्सपेंसेस आज हैं उनको रिप्लेस करने के लिए चाहिए रहेंगे. तो 2 करोड़ रुपए अगर आप 30 साल का आपके पास टाइम होराइजन है, तो 10 से 15,000 रुपए मंथली इज व्हाट यू शुड स्टार्ट विद. Is my, and some people might say that I have a 50,000 expense but I don't have 10,000 to spare today. So for them my suggestion would be, so ठीक है, no problem, आप अगर 5,000 spare कर सकते हैं, आप 5,000 से start करिए. But the thing that you have to keep in mind is, now ये 5,000 is not supposed to remain constant. Yeah. अगर आपकी इनकम हर साल 10% बढ़ी, तो आपका कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट भी 5 से 5,500 रुपए हो जाना चाहिए. जिस साल आपका अप्रेजल ज्यादा हो, किसी साल you might change your job, you get a 40% hike. So don't think that now I have 40% extra money to spend. Your investment corpus should also go up by 40% so that your goals never get delayed. So if you're at 5,000 rupees investment, you get a 40% hike. So 2,000 rupees increase हो जाएगा आपके investment corpus में भी हर महीने का. So you invest 7,000 rupees a month. So you should never forget that. Generally what people do is कि वो 5,000 करने लगते हैं और वो 5,000 ही रहता है. सैलरी कीप्स इंक्रीजिंग एंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिमेन्स द सेम. सो आपका परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर. सो परसेंटेज की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा आज एक्सपेंस कितना है और एक्सपेंस रिप्लेस करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए. दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट. Yeah. Raj is asking, I am 25 years old. What investment schemes are best for me? See, Raj, at 25, I think you should have 90% of your investments in equities. Do some bit of ULIP, do some bit of mutual funds also. ULIPs you should do up to at least 2.5 lakhs. Why? Because tax-free return मिलेगा. Mutual fund में 10% tax करोगे, इसमें 2.5 tax, up to 2.5 annual invest करोगे, tax-free मिलेगा. तो अप टू 2.5 लाख यूलिप में कर लो, उसके ऊपर कुछ, बिकॉज यूलिप में लिक्विडिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. 5 years तक की मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट होराइजन होती है. बीइंग यंग, सर्टेन पीपल वांट एक्सेस टू लिक्विडिटी आल्सो. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा का सारा म्यूचुअल फंड में डाल लो या सारा का सारा यूलिप में डाल लो. दोनों में रखो थोड़ा थोड़ा. यू विल हैव अ एक्सपोजर टू बोथ एसेट क्लासेस एंड कीप मैक्सिमम अमाउंट इन इक्विटीज राइट नाउ एंड कीप सम इन एफडी 10%. so that अगर आपको कोई exigency हो तो पैसे रहें. बाकी other instruments right now I would not really suggest unless until you have some understanding of the stock market. You can try your luck there, but there is extreme volatility there. So my suggestion or personally what I follow is that I just leave it to the experts, मतलब जो fund managers हैं, जो ये day in and day out करते हैं. Personally मुझे एक understanding है markets की, but time नहीं दे पाता मैं. ऐसे ही बहुत लोगों के साथ होता है कि थी अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने तो टाइम देना पड़ेगा. यू नीड टू मॉनिटर स्टॉक्स, किसका प्राइस नीचे जा रहा है, वेयर इज इट गोइंग, व्हेन डू यू फील द बॉटम विल बी देयर एंड देन यू शुड इन्वेस्ट और व्हेन यू शुड एग्जिट. इट्स अ फुल टाइम जॉब देन ऑफ मॉनिटरिंग दीज थिंग्स. हाफ हार्टेडली करेंगे तो लॉसेज होंगे, इसलिए वो एक्सपर्ट्स पे छोड़ देते हैं और हम अपना फिक्स्ड कॉर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट हर महीने करते रहते हैं. इज व्हाट वी शुड टारगेट. Okay. Now Praveen is asking, I started investing in PPF monthly 3,000 for next 15 years. मैं और क्या कर सकता हूँ? देखिए, पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन होता है. आई थिंक उसमें काफी अच्छा गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो आप पीपीएफ करते हैं, वेरी गुड. बट द अदर थिंग दैट आई एम सजेस्टिंग इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू शुड हैव डाइवर्सिफिकेशन. तो अब आपने एक गारंटीड रिटर्न मतलब वाले एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें आपका रिटर्न फिक्स है, तो अब आपको इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहिए. तो आपको या तो यूलिप या तो म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे डाल के देखना चाहिए कि इसमें कितना रिटर्न आ रहा है, एंड फिर उसके हिसाब से दोनों में प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा का सारा पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे वो सिर्फ यूलिप में या सिर्फ म्यूचुअल फंड में बढ़ाएं, पीपीएफ में मत बढ़ाएं. उसमें दोनों में प्रोपोर्शन में बढ़ाएं. जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी टू इन्वेस्ट बढ़ती जाएगी, आप दोनों में सेम प्रोपोर्शन में मेरे हिसाब से
पैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइएगा। बट आपको अब इक्विटी एक्सपोजर बढ़ना चाहिए क्योंकि आपने डेट वाले साइड का एक्सपोजर ले लिया है। Riddhi is asking ULIPs or SIP, which is better? See, when you say SIPs, SIPs is systematic investment, right? So basically यूलिप में भी आप मंथली इन्वेस्ट करते हो, इट्स अ सिस्टमैटिक वे टू इन्वेस्ट ओनली। तो ऐसा नहीं है कि यूलिप और एसआईपी में कोई डिफरेंस है। अगर आप एक मंथली सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करोगे तो वो एसआईपी है। अब वो एक वर्ड है जो म्यूचुअल फंड से कोरिलेट हो गया है बहुत ज्यादा, बट इट इज द सेम थिंग इन द यूलिप, इट्स द सेम थिंग इन द म्यूचुअल फंड। आप मंथली इन्वेस्ट करेंगे प्लान तरीके से तो वो एसआईपी होता है। अब आप वो यूलिप में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, एंड दोनों में रिटर्न्स कंपेरेबल आएंगे। थोड़ा सा टैक्सेशन का फर्क है, जो मैंने बोला म्यूचुअल फंड में 10% एलटीसीजी है, यूलिप में अगर आपकी 2.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट है तो टैक्स फ्री होगी। ये एक थोड़ा सा फायदा है इस साइड। Okay. Anurag is asking, how should a beginner select stocks for investment in direct equity? See, picking stocks directly, see, अगर आप शुरू में कर रहे हैं, एंड फर्स्ट माय एडवाइस होगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप यू शुड जस्ट लेट द फंड मैनेजर डू इट एंड यू जस्ट इन्वेस्ट इन यूलिप्स एंड म्यूचुअल फंड्स। बट इफ यू स्टिल वांट टू डू इट as an experiment, as you know, want to check it out, मेरा सजेशन होगा कि आप लार्ज कैप्स में रहिए। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप्स जो होते हैं, मतलब जो लेस देन 5,000 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनीज होती हैं, उसको स्मॉल कैप्स कहते हैं। लार्ज कैप्स आर बिग behemoths लाइक इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये सब लार्ज कैप्स में आएंगे। तो जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है वो लार्ज कैप्स होंगी। लार्ज कैप में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए तो अचानक से एक दिन 1 लाख रुपए घट के 50,000 हो जाए। स्मॉल कैप्स में ये हो सकता है कि आपने पैसे लगाए और वो घट के 50,000 हो जाए, एंड यस, स्मॉल कैप्स में रिटर्न प्रोपेंसिटी भी हायर है। वो 1 लाख इमीडिएटली 1 साल में 2 लाख भी हो सकते हैं, बट फिर रिस्क बहुत ज्यादा है। सी, आइडेंटिफाइंग द राइट कंपनी इन द स्मॉल कैप स्पेस वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको कंपनीज के नाम ही नहीं पता होंगे, राइट? इसीलिए एक आज अभी इनफैक्ट पॉलिसी बाजार पे ही एक स्मॉल कैप एनएफओ आया हुआ है। तो अगर आप स्मॉल कैप्स में और क्विक रिटर्न में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास स्मॉल कैप का न्यू फंड ऑफर आया हुआ है जिसमें आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें फंड मैनेजर्स आपके लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स फाइंड आउट करके इन्वेस्ट करेंगे। और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न देता है। इफ आई सी इन अ 20-year horizon, the small cap index has given a 19-20% return annually. तो लंबा होराइजन होगा तो स्मॉल कैप भी अच्छा रिटर्न देंगे, बट अगर आप खुद करना चाहते हैं और छोटा होराइजन है तो आप लार्ज कैप पे स्टिक करिए। और उसमें आप देखिए बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं, अडानी ग्रुप है। आई नो अडानी में बहुत वॉलिटिलिटी है तो शायद मैं अडानी नहीं रिकमेंड करूंगा, बट इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, इन सब में इन्वेस्ट करके आप पिक एंड चूज करके कर सकते हैं। Okay. Now Diksha is saying, hi, I am Diksha. I'm a beginner in investment field. How to start on with investing? What are the best options for me that I should choose without much complications? See, again, as I mentioned earlier, if you are a beginner and you are young, extremely young, तो इक्विटीज में यूलिप म्यूचुअल फंड करिए। अगर आप एफडी में पैसा रखते हैं और आपका बहुत ज्यादा पैसा एफडी में पड़ा हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिशनल गारंटीड रिटर्न प्लान में पैसा डालिए। थोड़ा सा पैसा वहां से वहां मूव कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको एफडी से बेटर रिटर्न मिलेगा। 7.5% तक टैक्स फ्री रिटर्न मिल सकता है ना, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से नीचे की है एनुअली। तो वो दोनों पे डिपेंड करता है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और एफडी में बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं, जो मैंने देखा है मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड रखते हैं, व्हेन पीपल स्टार्ट अर्निंग, पेरेंट्स जनरली 2 ही इन्वेस्टमेंट कराते हैं। सबसे पहले एक पीपीएफ खुलवा देते हैं और एफडी जरूर करवाते हैं, और वो सारा का सारा डेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है और बहुत ज्यादा रिटर्न, मतलब ऐसा अच्छा रिटर्न भी नहीं आ रहा होता, इतना कोई टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है एफडी तो, राइट? इट्स नॉट अ टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि टैक्स तो भरना ही पड़ेगा जो मैच्योरिटी अमाउंट है। तो अगर आप एफडी करते हैं तो ट्रैड प्लान में डालिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप यंग हैं और एफडी भी नहीं करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इक्विटीज में पैसा डालिए, यूलिप म्यूचुअल फंड, आइदर यू कैन डू एंड टेक द बेनिफिट्स। Yeah, thank you, Sameer. No Now, Mohit is saying, मैं मोहित हूँ हरियाणा से, मेरी बेटी 2 साल की है और मेरी एज 32 साल है। मुझे गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्राइवेट स्कीम में?
देखिए मोहित, अगर आपकी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि एक योजना है जो आपको यूज करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बेटे का फ्यूचर, आप अगर सोचेंगे कि मैं सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करके, सारा पैसा इन्वेस्ट करके उसका फ्यूचर उसी से प्लान हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको प्राइवेट स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं ये रिटर्न तो फिक्स देती हैं, बट इनके रिटर्न भी घटते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि पीपीएफ का रिटर्न भी 12% हुआ करता था 8 से 10-12 साल पहले, आज घट के कुछ 7% की रेंज में आ गया है, राइट। तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। डिक्रीजिंग ट्रेंड पे इसलिए है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में जो फिक्स्ड इनकम वाला इंटरेस्ट रेट होता है, जो गारंटीड रेट होता है, वो कम ही होता है ना। क्यों? क्योंकि आप कोई भी कंट्री से कंपेयर करिए, यूएस, यूके, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज में जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा वो 2%, 1% ही होता है। तो इंडिया भी उसी ट्रेंड पे जा रहा है। हम 12% से 6-7% के रेंज पे अब आ गए हैं और फ्यूचर में ये कमी होता जाएगा। तो आपको सुकन्या समृद्धि करना चाहिए, जो एक गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेसिफिक स्कीम है, बट सारा का सारा पैसा उसमें मत डालिए। आपको देखिए सुकन्या समृद्धि में 7%, 7.6 आई थिंक 7.6 इज व्हाट यू गेट, तो 7.6% का अच्छा रेट मिलेगा। बट ये भी देखिए हर साल चेंज होता रहता है, तो ये नहीं है कि 7.6 अब बच्चे की लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गया। ये अगले साल कम हो सकता है, उसके अगले साल और कम हो सकता है। तो और इन्फ्लेशन इकोनॉमी में 6-7% चल रहा है आजकल, तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा है सुकन्या समृद्धि के थ्रू। तो आपको इक्विटी में पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आपको 10-12% का रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आप कभी भी बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं बना पाएंगे। एंड सी, इसमें मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप अगर एजुकेशन प्लान करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में आज ग्रेजुएशन मतलब बीटेक या कुछ एमबीए कराना चाहते हैं, तो 20 लाख एटलीस्ट फीस होगी। मतलब 20 लाख से भी ज्यादा भी कहीं कहीं होगी, बट 20 lakhs is the budget you should have, is my understanding today. And if your kid is just 2 years old right now, so by the time they go for graduation in 16 years, तब तक वो 20 लाख की जो फीस है वो 40 से 50 लाख रुपए तो हो चुकी होगी, राइट। एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रेट पे बढ़ रहा है, तो उसकी फीस और रेट पे बढ़ेगी, तो 15 साल में आपको 50 लाख रुपए फीस भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो 50 लाख तो बच्चे की ग्रेजुएशन की फीस हो गई। अब ये आप अगर सिर्फ 7% रेट पे अर्न करना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़े। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेके इक्विटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और अगर आप 5 से 7 हजार रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आपको 10% टाइप्स का रिटर्न आ गया, तो आपके 50 लाख रुपए का कॉर्पस बन सकता है 15 साल में। तो इसलिए आपको इक्विटी पार्टिसिपेशन रखना चाहिए। थोड़ा सिक्योरिटी के लिए कर लीजिए सुकन्या समृद्धि में, मे बी 20-30%, बाकी 70% एक्सपोजर तो इक्विटीज में रखना चाहिए, इज माई सजेशन। और जैसे जैसे आपका जो इवेंट है ना, जो गोल है, जैसे जैसे वो पास आता जाएगा, वैसे वैसे आप पैसा इक्विटी से निकाल के किसी गारंटीड इंस्ट्रूमेंट में डाल दीजिएगा, एफडी में डाल दीजिएगा, जैसे कि अगर तब मार्केट गिरे तो आपको नुकसान ना हो। बट देखिए 10-15 साल में आपके पैसे बन जाएंगे जो आपका गोल है उतने के लिए। Thank you for clarifying that, Sameep. We have reached the end of today's session. So thank you so much for joining us. And thank you everyone for tuning in. We hope you found this session useful. अगर आपकी कोई और भी queries है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक लिंक है AskPB के लिए, आप वहाँ जाकर अपनी queries छोड़ सकते हैं and we will surely get back to you. And thank you so much everyone once again for tuning in, and please do not forget to like, share and subscribe. And we'll see you in the next session next Friday. Thank you. Thank you, Simran. Thanks guys. Bye. Thank you. Thank you.